دوسرے روز شیر خان کی والدہ اور اس کی پیاری بیوی اور اس کے پیارے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے پیاروں اور اپنے جگر کے ٹکڑے کی قبر پر پھول چڑھانے لگا تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ وہیں بیٹے کی قبر سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے عزیزوں اور دوستوں نے اسے سنبھالا اور حوصلہ دینے لگے۔ اس سے اگلے روز شیر خان کے گھر میں سب عزیز و اقارب اور اس کے دوست جمع تھے۔ سب سوگوار تھے۔ کبھی کبھی کوئی اٹھ کر شیر خان کے پاس آ کر اسے حوصلہ دیتا۔ شیر بھائی حوصلہ کرو، اللہ کو یہی منظور تھا، خدا کی مانتے تھی، اس نے واپس لے لی۔ شیر خان چپ تھا، اس کے ہونٹوں پر مہر سکوت ثبت تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہر ایک کو تک رہا تھا۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شیر خان کا ایک رشتہ دار دوسرے سے کہہ رہا تھا، یہ سب دشمن کے بھیجے ہوئے دہشت گردوں کا کام ہے۔ شیر خان کو اسی روز معلوم ہو گیا تھا اس کے بیوی بچوں کو بھارت کے بھیجے ہوئے دہشت گردوں نے قتل کیا ہے، اس لیے کہ شیر خان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی ملک میں ایک جگہ ایسی المناک واردات ہوئی تھی جس میں بھارت کے دہشت گردوں نے پورے کے پورے خاندان کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب رشتہ دار، دوست، عزیز و اقارب شیر خان کو حوصلے اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے چل دیے۔ شیر خان گھر میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ دیر تک وہ صوفے پر بیٹھا خالی کمرے کے در و دیوار کو تکتا رہا۔ پھر اسے ایسے لگا جیسے ساتھ والے بیڈ روم سے اس کے بیٹے عامر نے اسے آواز دے کر بلایا ہو۔ ڈیڈی، ڈیڈی، شیر خان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ عامر بیٹے، میں آ رہا ہوں۔ وہ دوڑ کر بیڈ روم میں گیا۔ بیڈ روم خالی پڑا تھا۔ پلنگ کے پاس میز پر اس کی بیوی عارفہ اور بیٹے عامر کی فریم کی ہوئی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اکھڑے اکھڑے قدموں سے تصویر کی طرف بڑھا۔ پلنگ کے پاس جا کر اس کے پاؤں کسی چیز سے ٹکرائے۔ اس نے جھک کر دیکھا، دری پر کھلونا مشین گن پڑی تھی جو شیر خان نے اپنے بیٹے کو تحفے کے طور پر دی تھی۔ شیر خان نے کھلونا مشین گن اٹھا لی۔ کھلونا مشین گن ہاتھ میں لے کر وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل و دماغ میں جیسے آندیاں چلنے لگیں، کانوں میں بادلوں کے دھماکے گونجنے لگے، آنکھوں میں بجلیاں سی چمکنے لگی۔ شیر خان کھلونا مشین گن لیے بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ یہاں سے ہم آپ کو مجاہدوں اور کمانڈوز کے الجہاد تنظیم کے اس چھوٹے سے کوارٹر میں لیے چلتے ہیں جہاں کمانڈو شیر خان اپنے نائب کمانڈو گل خان کو اپنی زندگی کی داستان غم سنا رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا گیا، میری شفیق ماں، میری محبت کرنے والی بیوی، میرا معصوم اکلوتا بیٹا عامر، میرا ہنستا مسکراتا گھر دیکھتے دیکھتے برباد کر دیا گیا۔ جس گھر میں ایک لمحے پہلے سالگرہ کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، ہر طرف کہے گونج رہے تھے، وہاں دوسرے لمحے میرے پیاروں کی خون آلود لاشیں پڑی تھیں۔ اور جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ دشمن ملک کے بھیجے ہوئے دہشت گردوں کی لائی ہوئی بربادی تھی جن کا مقصد ریلوے اسٹیشنوں، شاپنگ سینٹروں، بسوں کے اڈوں، سنیما گھروں، چلتی لاریوں میں بموں کے دھماکے کرنا اور گھروں میں عبادت گاہوں میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر کے بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے تاکہ ملک انتشار کا شکار ہو جائے، ملک میں خوف و ہراس پھیل جائے اور ملک ترقی نہ کر سکے، تو میری آنکھوں کے سامنے سے جیسے ایک پردہ ہٹ گیا۔ میں نے اپنے اصلی دشمن کو پہچان لیا۔ پھر مجھے پاکستان کی ہر ماں اپنی ماں، ہر بہن اپنی بہن اور ہر بچہ اپنا بچہ لگنے لگا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جب تک زندہ ہوں جرائم، دہشت گردی اور دشمن کے بھیجے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا، اور جب تک ملک سے دہشت گردی اور جرائم کا خاتمہ نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر میں ایک روز اس تنظیم کے کمانڈو ٹریننگ سینٹر پہنچ گیا جس کا نعرہ ہے ملک سے جرائم اور دہشت گردی کا خاتمہ اور اس کے خلاف مسلسل جہاد۔ یہ ہے میری داستان حیات، اور یہ وہ وجہ ہے کہ میں نے ایک اعلیٰ ملازمت چھوڑ کر اس تنظیم میں شرکت کر لی اور قلم چھوڑ کر اسٹین گن کیوں اٹھا لی۔ شیر خان خاموش ہو گیا۔ نائب گل خان پر شیر خان کی زندگی کے دردناک حادثے نے گہرا اثر کیا تھا۔
छोटे से कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में गुजरे हुए वाकयात व हादसात की उदासी भी थी और आने वाले सुनहरी मुस्तकबिल का पैगाम मुसर्रत भी था। शेर खान ने गुल खान से अपनी फैमिली ग्रुप वाली फोटो लेकर एल्बम में लगाई और एल्बम को बंद करके एक तरफ रख दिया और पुरजोश लहजे में बोला, मैंने गम की दास्तान का ये बाब बंद कर दिया है। अब मेरे सामने एक नया दरवाजा खुल चुका है, जिसके आसमान पर मैं अपने वतन के सुनहरे मुस्तकबिल के सूरज को तलू होते देख रहा हूँ। हमने अपने असली दुश्मन को पहचान लिया है। हमारा असली दुश्मन भारत है, जिसने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और जो पहले दिन से पाकिस्तान को ख़त्म करने की साजिशों में मसरूफ़ अमल है, लेकिन वो इसे नहीं मालूम कि पाकिस्तान अल्लाह और इसके दीन इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है और इसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपने और अपने बच्चों के खून के नजराने पेश किए हैं और वो कुर्बानियां दी हैं कि जिनकी मिसाल तारीख में भी नहीं मिलती। दुश्मन चाहे जितने हथकंडे इस्तेमाल कर ले, जिस कदर चाहे तकरीब कार्रवाइयाँ और साजिशें कर ले, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनके खिलाफ जंग करेगा और इन्हें नाकाम बना देगा। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, दुश्मन ने जब भी वतन अजीज पर हमला किया और इसे जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम अपने वतन पाक के सिपाही हैं, गाजी हैं, हमदाने जिहाद में हैं और जब तक जिंदा हैं दुश्मन के खिलाफ जंग करते रहेंगे और इसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। शेर खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसने अपने नायब गुल खान की तरफ देखकर कहा, अब तुम भी जाकर आराम करो, सुबह हमें अपनी तंजीम के कमांडिंग ऑफिसर से मिलना है। मेरा ख्याल है कि वो हमें किसी अहम मिशन पर भेजने वाले हैं। नायब गुल खान ने बड़ी गर्मजोशी से शेर खान से हाथ मिलाया और खुदा हाफिज कहकर चला गया। कमांडो शेर खान का अंदाजा सही था। अगले रोज तंजीम के कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान और गुल खान को अपने ऑफिस में बुलाया। दोनों मुजाहिद कमांडो सीईओ के ऑफिस में आ गए। इस वक्त कमांडिंग ऑफिसर मेज पर अपने सामने शहर का नक्शा फैलाए इसे गौर से देख रहे थे। कमांडो शेर खान और गुल खान ने अस्सलाम वालेकुम कहकर सल्यूट किया और खड़े रहे। कमांडिंग ऑफिसर ने हाथ के इशारे से सल्यूट का जवाब देकर कहा, बैठ जाओ शेर खान और गुल खान। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, हमें इत्तला मिली है कि भारत ने हमारे मुल्क में तकरीबी कार्रवाइयों की खातिर दहशतगर्दों की एक पार्टी स्मगल की है, जो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त शहर के इस इलाके में किसी जगह छुपी हुई है। ये देखो। कमांडिंग ऑफिसर ने शहर का नक्शा शेर खान और गुल खान के सामने रख दिया। दोनों नक्शे पर इस गोल सुर्ख निशान को देखने लगे जो सीईओ ने लगाया था। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ये दहशतगर्द हिंदू हैं, मगर इन्होंने अपना हुलिया मुसलमानों का बनाया हुआ है। तुम्हें सबसे पहले इस इलाके में जाकर ये सुराग लगाने की कोशिश करनी है कि इस इलाके किसी मकान में कोई नए किराएदार आए हैं या नहीं। अगर आए हैं तो किस मकान में रहते हैं। इस तस्दीक के बाद तुम्हें कमांडो पार्टी ले जाकर इन्हें काबू करना होगा। अगर वो तुम पर फायर खोल देते हैं तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। शेर खान ने पूछा, सर इन दहशतगर्दों की नफरी कितनी है। कमांडिंग ऑफिसर ने जवाब दिया, ये भी तुम्हें मालूम करना होगा। हमें सिर्फ ये रिपोर्ट मिली है कि भारत की ये दहशतगर्द पार्टी इस इलाके में किसी जगह छुपी हुई है। कोई और सवाल? शेर खान ने कहा, कोई सवाल नहीं सर। कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, कोई एतराज? शेर खान ने कहा, कोई एतराज नहीं सर। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ओके जाओ, खुदा हाफिज। दोनों कमांडो सल्यूट करने के बाद कमांडिंग ऑफिसर के दफ्तर से बाहर निकल आए। शेर खान ने गुल खान से कहा, मेरे क्वार्टर में जाओ, हमें बहुत सी बातों पर गौर करना है। दोनों क्वार्टर के कमरे में जाकर बैठ गए। शेर खान कहने लगा, सीईओ साहब ने रिपोर्ट के मुताबिक शहर के जिस इलाके की निशानदेही की है वो शहर की चार दीवारी के बाहर एक पुरानी बस्ती है। इस बस्ती के गली कोचों से हम दोनों वाकिफ हैं। नायब गुल खान ने कहा, लेकिन हमें सुराग रसानी के लिए कोई बेस बदल कर वहां जाना चाहिए, लेकिन बेस ऐसा होना चाहिए कि किसी को हम पर शक न पड़े। मैं भी यही सोच रहा हूं। शेर खान ने कहा, तुम्हारे ख्याल में तुम्हें किस बेस में वहां जाना चाहिए? गुल खान सोचने लगा। शेर खान भी सोचने लगा। गुल खान ने कहा, बेस ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें लोगों की हमदर्दियां भी हासिल हों
और वो कुछ बताते हुए कतराने की कोशिश ना करें। शेर खान ने कहा, तो फिर इसके लिए सबसे अच्छा बेस मलंगों का ही हो सकता है। मलंगों को वैसे भी लोग बेजरूरत समझते हैं, ये ठीक रहेगा। गुल खान बोला। शेर खान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें आज दोपहर के बाद इस मुहिम पर निकल जाना चाहिए। ओके, गुल खान ने जवाब दिया। दोपहर के बाद कमांडो शेर खान और नायब कमांडो गुल खान ने वही तंजीम के एक खास कमरे में जाकर मलंगों वाला हुलिया बनाया और कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करने के बाद एक खुफिया दरवाजे से निकलकर शहर की तरफ चल पड़े। दोनों ने लंबे लंबे बालों की विगेन लगा रखी थी, लंबे झोले पहने हुए थे, गले में रंग बिरंगे मनकों की मालाएं थी, हाथों में चिमटे पकड़े हुए थे और सड़क के किनारे किनारे बड़ी मस्कीन सूरतें बनाए इसी बस्ती की तरफ जा रहे थे जहां रिपोर्ट के मुताबिक भारत की दहशतगर्द पार्टी ने किसी मकान में अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। दोनों ने कंधों के साथ पुराने थैले लटकाए हुए थे जिनमें पहले ही से थोड़ा थोड़ा आटा डाल दिया गया था। निशानजदा बस्ती मशरक की जानब थी और वहां करीब से रेलगाड़ी भी गुजरती थी और एक फाटक भी था। चलते चलते दोनों कमांडो रेलवे लाइन पर आ गए और अपना रुख निशानजदा बस्ती की रेलवे फाटक की तरफ कर लिया। मौसम खुशगवार था, धूप निकली हुई थी। दोनों को रेलवे लाइन पर चिमटे बजाकर गाने की जरूरत नहीं थी, यह काम इन्होंने बस्ती में जाकर शुरू करना था। रेलवे फाटक पर पहुंचने के बाद दोनों कमांडो इस कच्ची सड़क पर हो गए जो शॉर्टकट थी और मुतलुबा बस्ती में जाती थी। ये पुरानी बस्ती थी, पुराने मकान और हवेलियां भी थीं और नए मकान भी बने हुए थे। बाजार में दुकानें खुली थीं। दोनों कमांडो बस्ती के एक सिरे से इसमें दाखिल हुए। शेर खान ने गुल खान को बता दिया था कि हम मलंगों की तरह ना तो धमाल डालेंगे और ना गाना वगैरह गाएंगे और ना चिमटा बजाएंगे। इस तरह खामखा हमारे इर्द गिर्द लोग जमा हो जाएंगे और बच्चे हमारे साथ साथ चलने लगेंगे और हमें खोज लगाने में दुश्वारी होगी। बेहतर होगा कि हम खामोशी से दुकानदारों की बजाय मकानों के आगे जाकर थोड़ा चिमटा बजाकर खैरात के लिए आवाजें लगाएं और देखेंगे कि किस घर में कौन रहता है। चनाचा वो बस्ती के बाजार में से खामोशी से गुजर के बाहर की तरफ कुछ नए और पुराने मकान अलग अलग खड़े थे। शेर खान ने कहा, पहले इन मकानों का मुशाहदा करते हैं। चनाचा वो मलंगों के बेस में ही एक मकान के दरवाजे पर आकर रुक गए। गुल खान ने थोड़ा सा चिमटा बजाने के बाद आवाज बुलंद की, सब्ज पीर के मलंगों को अल्लाह के नाम पर कुछ खैरात मिल जाए, अल्लाह भला करेगा। दूसरी आवाज पर एक औरत ने दरवाजा खोलकर गुल खान को 1 रुपया देकर कहा, बाबा जी इस वक्त यही कबूल करो, अल्लाह भला करेगा बीबी। गुल खान ने रुपया लेकर दुआ दी और वो आगे चल पड़े। दूसरे मकान पर भी इसने आवाज लगाई। वहां भी एक बूढ़ी औरत ने इन्हें खैरात में 2 रुपये दिए और वो अगले मकान की तरफ चल पड़े। शेर खान ने कहा, दहशतगर्द जरूर किसी ऐसी जगह और ऐसे मकान में होंगे जो बाहर से पुराना लगता हो और जिसे देखकर यही ख्याल आए कि ये पुराना मकान है, इसमें जद्दी पुश्ती लोग रहते होंगे। इस दौरान इनकी निगाह कुछ फासले पर एक पुराने मकान की तरफ गई जो एक छोटे से जोहर के किनारे पर तन्हा खड़ा था। शेर खान ने कहा, गुल मुझे ये मकान मशकूक लगता है। गुल खान ने कहा, चलो इस मकान पर जाकर आवाज लगाते हैं, अंदर से कोई ना कोई तो निकलेगा। शेर खान ने कहा, नहीं, हमें ये गलती नहीं करनी होगी, जरा ठहरो, वो सामने एक रेडी वाला खड़ा है, इससे बात करते हैं। दोनों रेडी वाले के पास चले आए। ये एक बूढ़ा आदमी था जो सब्जी बेच रहा था। शेर खान ने रेडी वाले के पास जाकर चिमटा बजाकर खैरात मांगी। बूढ़े ने इन्हें 1 रुपया दिया। शेर खान ने इसे दुआ दी और पूछा, बाबा जी हमारे पीरो मुर्शिद इसी बस्ती में आए हैं, किसी ने कहा है कि वो यहीं किसी मकान में रह रहे हैं। रेडी वाला बोला, बाबा हमें क्या पता तुम्हारे पीरो मुर्शिद यहाँ कहाँ ठहरे हैं, किसी दुकानदार से जाकर मालूम करो। शेर खान ने मशकूक मकान की तरफ इशारा करके पूछा, इस सामने वाले मकान में कौन रहता है, कहीं हमारे पीरो मुर्शिद इस मकान में ही ना उतरे हों। रेडी वाले ने कहा, 1 हफ्ता हुआ यहाँ एक नए किराएदार आए हैं, आदमी आदमी हैं, दिन को ताला लगाकर चले जाते हैं, शाम को आते हैं, जाकर मालूम कर लो, शायद तुम्हारे पीरो मुर्शिद हों। ये लोग मोहल्ले में किसी से मिलते जुलते नहीं। गुल खान ने पूछा,
रेडी वाला बोला, कहा ना कि दिन के वक्त ताला लगाकर चले जाते हैं, अंधेरा होने के बाद आते हैं, कभी किसी से नहीं मिलते, तुम खुद जाकर मालूम कर लो। अच्छा बाबा, हम खुद ही पता कर लेते हैं। ये कहकर शेर खान चिमटा बजाता आगे बढ़ा। गुल खान इसके साथ साथ था। गुल खान ने पूछा, क्या ख्याल है? अभी दिन है, इन लोगों का इंतजार कर लें, वो शाम को आते हैं। शेर खान बोला, इनका हर हालत में इंतजार करना पड़ेगा, इस तरफ आ जाओ। वो पुराने जोहड़ वाले इस मशकूक मकान के करीब से गुजरे तो इन्होंने देखा कि मकान पर ताला पड़ा हुआ था। शेर खान ने कहा, रेलवे लाइन के पार एक तकिया है, वहां चलकर बैठ जाते हैं। सूरज गुरूब होने के फौरन बाद यहाँ आकर किसी जगह छुप जाएंगे। वो वहीं से रेलवे लाइन की तरफ हो गए। रेलवे लाइन की दूसरी तरफ बोर्ड के दरख्तों के साए में एक पुराना तकिया था, जहां पहले ही से कुछ फकीर लोग बैठे हुक्का वगैरह पी रहे थे। शेर खान और गुल खान भी इनके पास जाकर बैठ के और जिस किस्म की बातें मलंग लोग किया करते हैं, इनसे इसी किस्म की बातें करने लगे। सूरज गुरूब होने में 1-1.5 घंटा बाकी था। दोनों कमांडो मलंगों के बेस में तकिए में ही बैठे रहे। जब सूरज मगरब की तरफ मकानों के पीछे डूब गया और शाम के हल्के हल्के साए उतरने लगे तो दोनों चिमटा बजाते उठे और बस्ती की तरफ चल पड़े। पुराने जोहड़ वाले मशकूक मकान के करीब आकर वो दरख्त के नीचे बैठ गए। इन्होंने इधर उधर से सूखे पत्ते और झाड़ियां इकट्ठी करके वहां दूनी लगाई, चिमटे जमीन में गाड़ दिए और मलंगों की तरह आलती पालती मार कर बैठ गए। वो इस तरह बैठे थे कि इनका रुख मशकूक मकान की तरफ था। मकान का दरवाजा इस दरख्त से जिसके नीचे शेर खान और गुल खान बैठे थे 50 फुट के फासले पर होगा। अभी दिन की धुंधली धुंधली रोशनी बाकी थी कि इन्हें रेलवे फाटक की तरफ से 5-6 आदमी आते नजर आए। इनका रुख मशकूक मकान की तरफ था। गुल खान ने शेर खान की तवज्जो इस तरफ दिलाई और कहा, शेर खान इस तरफ देखो। शेर खान ने भी देखा कि कुछ आदमी मकान की तरफ चले आ रहे हैं। इनमें से कुछ आदमियों ने टुकनों से ऊपर तक की शलवारें और लंबे कुर्ते पहने हुए थे। 2 आदमियों ने सफेद धोतियां बांध रखी थी। कुछ की शरई दाढ़ियां भी थीं। एक आदमी के हाथ में तस्बीह थी। शक्लो सूरत से वो किसी मस्जिद के इमाम लगते थे। ये कुल 5 आदमी थे। वो लोग शेर खान और गुल खान के करीब से गुजर गए। एक ने आगे बढ़कर मकान का ताला खोला और फिर बारी बारी 5 आदमी मकान में दाखिल हो गए। इनके साथ ही मकान का दरवाजा बंद हो गया। गुल खान ने शेर खान से कहा, क्या ख्याल है शेर खान? शेर खान ने कहा, मुझे लोग मशकूक लगते हैं। ऐन मुमकिन है यही भारतीय दहशतगर्द हों। हमें सीओ साहब को रिपोर्ट करनी चाहिए। इसी वक्त दोनों वहां से उठे और अपनी तंजीम के हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़े। कमांडिंग ऑफिसर को मालूम था कि दोनों कमांडो सराग रसानी पर निकल चुके हैं। वो इनका इंतजार कर रहे थे। कमांडो शेर खान और नायब गुल खान ने जाते ही इन्हें पूरी रिपोर्ट दे दी। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, तुम लोगों ने जिस मकान की निशानदेही की है, मुझे 2 घंटे पहले इतला मिल चुकी है कि भारतीय दहशतगर्द इसी मकान में रहते हैं। इससे पहले कि वो तो कोई तकरीबी कार्रवाई करें, हमें इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तुम आज रात पिछली पहर अपनी पार्टी ले जाकर छापा मारोगे और दुश्मन के इन दहशतगर्दों का खात्मा करोगे। कोई चांस लेने या इंतजार करने का वक्त नहीं है। ठीक है सर, शेर खान ने कहा। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, मिशन हर हालत में कामयाब होना चाहिए। इंशाल्लाह सर, शेर खान ने कहा। शेर खान ने इसी वक्त अपने और गुल खान समेत 6 मुजाहिदों की कमांडो पार्टी तरतीब दी और बता दिया कि सबको रात के पिछले पहर अजान के वक्त इस मकाम पर जमा होना होगा। शेर खान ने कहा, हमारे पास फुल मैगजीन होने चाहिए। वो लोग यूं ही मकान में नहीं रह रहे। इनके पास भारी मकदार में असला और गोला बारूद होगा। हो सकता है दस्ती बम भी हों, लेकिन हम इन्हें दस्ती बम फेंकने का मौका नहीं देंगे। अब तुम लोग जाकर आराम करो। सुबह अजान के वक्त ही इस जगह पहुंच जाना जहां तुम्हें कहा गया है। सब कमांडो गुल खान और शेर खान समेत अपने अपने क्वार्टरों में चले गए। शेर खान ने रात के 4 बजे का अलार्म लगाया और सो गया। रात के पिछले पहर ठीक 4 बजे क्लार्क के अलार्म ने इसे जगा दिया। इसने फौरन मुंह हाथ धोया, कमांडो की स्याह यूनिफॉर्म पहनी, असला निकाल कर मैगजीन वगैरह चेक किया और सुबह की अजान का इंतजार करने लगे। जिस वक्त मस्जिद से
فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی تو شیر خان فوراً کوارٹر سے نکل کر پچھلے پہر کے اندھیرے میں ایک طرف کو تیز تیز چلنے لگا۔ یہ ایک خاص جگہ تھی جہاں علاقہ ویران تھا۔ گل خان اور ان کی پارٹی کے دوسرے کمانڈو وہاں پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے مل کر فجر کی نماز پڑھی اور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے خدا کے حضور دعا مانگی اور اس درخت کی طرف چلے جہاں چاروں طرف سے بند جیپ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فوراً جیپ میں سوار ہوئے اور جیپ شہر سے باہر ریلوے لائن والی بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ شیر خان خود جیپ چلا رہا تھا، اس کے ساتھ گل خان بیٹھا تھا۔ اسٹین گنیں انہوں نے نیچے رکھی ہوئی تھیں۔ پارٹی کے باقی چاروں کمانڈو بند جیپ کے اندر بیٹھے تھے۔ رات کے پچھلے پہر شہر کے بازار خالی پڑے تھے۔ ان کی جیپ تیزی سے فاصلہ طے کرتی ہوئی ریلوے لائن کے پھاٹک پر آ گئی۔ یہاں سے وہ جیپ کو لے کر بستی کے مشکوک مکان کی طرف جانے والی کچی سڑک پر آ گئے۔ شیر خان نے جیپ کی بتیاں گل کر دی تھی، جیپ کی رفتار بھی کم کر دی تھی۔ جیپ آہستہ آہستہ چلتی مشکوک مکان کے عقب میں درختوں کے ایک جانب آ کر رک گئی۔ فوراً ساری کمانڈو پارٹی جیپ میں سے نکلی اور شیر خان کی کمانڈ میں اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھی۔